اور یہ محترمہ چائے تیار ہے، پاپے تیار ہے. پاپے یہ آپ یہ نہ کہیں روز کھا رہے ہیں، ان کو ختم کرنا ہے. زیادہ لے لیے تھے، اب اس کے بعد منگانے نہیں. اب اس کے بعد ہم نے یہ نہیں لانے. یہ بھی کوئی ہیلدی چیز نہیں ہے. اور یہ چائے پھڑی ہے آپ، شکریہ. لیکن تو کمبن کیوں نہیں؟ اندر سے آئی ہوں. نہیں مطلب میری کو وہ ہے کہ دہشت نہیں ہے، میرے تو ڈر کے کمبن نہیں ہے یا سردی کا کمبن نہیں. چلے اگر آپ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ آپ کی دہشت سے ڈر رہی ہوں تو پھر اچھا اس لیے کمبن نہیں. ویری گڈ ویری گڈ، ڈرنا چاہیے. چلے یہ ان لوگوں کے لیے چائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نظر سے بچائے، ہر چیز سے بچائے، وہ شر سے بچائے. یہ زید ہمیشہ مجھے وہ لوگوں نے جو کامنٹ کیے تھے نا کچھ کہ انکل بھاگ گئے، آپ نے اتنے ناشتے بنوائے، انکل نہیں بھاگ گئے. انکل اللہ تو بس تکبار، اللہ معافی دے. اللہ ہمیشہ زید ایسے ہی ہمیشہ بناتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ابھی بچے چھوٹے تھے تو بھی بناتے تھے، اب بھی بناتے ہیں. اور آپ لوگوں کے کوسچن میں کل دیکھ رہی تھی زید کی پوسٹ پہ ہاں انسٹاگرام پہ، تو وہ چلے زید نے یہ ویڈیو لگائی دی صبح صبح، تو میں نے کہا اس پہ بھی بات کر لی جائے. اور ایک وہ میں کمنٹ، بلکہ مجھے تو اب ان کو ان کا نام سے وہ بتانا چاہیے تھا. بہت نہیں، آپ کمنٹ دیکھنے کامنٹ لگے. دیکھ رہے ہیں. نہیں وہ میں نے کہا ابھی چلو کبھی کبھار جو ریگولر کمنٹ کرتا ہے، اتنا ٹائم اسپینڈ کرتا ہے اور اپنے بڑے اسپیشل ٹائپ کے ویو اس کے اوپر فیلنگس وہ لکھتا ہے یا لکھتی ہے، تو اس کو کبھی کبھار اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے، ہمیں جواب بھی دینا چاہیے. وہاں تو آپ کو پتہ ہے میں جواب دیتا ہوں ہمیشہ. اور آپ یہ سوچیں مجھے ایک تو پہلا کامنٹ ہے کیا تھا، یہ کہ آپ ہی پڑھ پڑھ کے بتائیں، آپ ہی مزے سے بتائیں. وہ پنجابی میں نہیں کہتے لے لے پاپا زید دی جانو مانو. اس کے بعد انہوں نے لافنگ ایموجی اور وہ ہارٹ بھی بنایا ہوا. تو سو رائی صاحب یہ کہا یار JTHEKYD ایک ہی بنیا چلو جے دا قائدیا عجیب سے لفظ ہے. چلو جو بھی ہے، تو یہ ان کا اکاؤنٹ ہے. تو انہوں نے یہ لکھا، بڑا وہ اچھا لگا. ایک اور جو میں اس میں سے ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں نا کہ وہ اس میں تھا کہیں اور تھا آس پاس. اسی میں میں ڈھونڈ کے دوں آپ کو. آ گیا. ایک نے تو یہ لکھا ہے، یہ آمنہ خالد، ہاں آمنہ خالد، انہوں نے لکھا جی پاپا زیز ویڈیو ایڈیٹنگ اسکلس اسپیشلی وین ہی فیچرز ہز وائف. اچھا بیوٹیفلی ریفلیکٹ ہز افیکشن فار ماما زید، ناٹ ٹو مینشن دا پرفیکٹ چوائس آف سانگس ان دا بیک گراؤنڈ. مطلب ہے کہ وہ اس کے اندر بیک گراؤنڈ میں جو یہ سانگ لگاتے ہیں وہ بھی بڑا، کبھی کبھار تو میں ایسے کبھی تھوڑا سا وہ اس میں لگاتا ہوں، سوچ کے لگاتا ہوں. ورنہ تو میں تو جو ٹرینڈ میں کوئی چاہے وہ پنجابی ہے، چاہے وہ پشتو ہے، چاہے وہ اس کو میوزک مجھے اس کا جو ہے فاسٹ ریدم والا میوزک وہ جو اچھا لگتا ہے اس کی، تو میں اس کو لگا دیتا ہوں. ٹرینڈ بھی نہیں فالو کرتے. ہاں اس کو بھی نہیں. زید کو ہوتا فاسٹ میوزک کو. ہاں یہ آ گیا جو اصل میں بتانا چاہ رہا تھا. یہ ہے ثنا 5، کیا ہوتا ہے اس کو وہ نیچے انڈر اسکور کہلاتا ہے 0383. چلو ثنا ہی ہم لے لیتے ہیں. تو یہ لکھا کہ آئی ایم کیوریس ور یو آلویز دس لونگ ایون ان ینگر ایج. مطلب وہ مجھ سے کوشچن کر رہی ہیں یا مطلب ماما زید سے کوشچن کر رہے ہیں، اور اسپیشلی چونکہ یہ لگائی میں نے ہے تو سمجھ لو کہ مجھے کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ ایسے ہی ینگ ایج میں بھی ایسے ہی مطلب لونگ تھے ایک دوسرے کے ساتھ، یا اگر مجھے پوچھ رہے تو میں وائف کے ساتھ. تو میں نے جواب بڑا ان کو ٹرکی، پہلے لکھا نو، پھر لکھا نو، پھر لکھا نو، وہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں. اچھا یہ لکھ کے میں کہا نہیں مطلب وے، اچھا نو کر کے پھر میں نے کہا وے مور دین دیٹ ان ینگر ایج. تو اس میں شک کوئی نہیں. اور ان کا کوشچن بھی بڑا اچھا تھا، ریلیونٹ تھا کہ ایسا تو نہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ہو گیا، مطلب یہ وہ چل رہا. تو میں نے ان کو یہ جواب دیا، میں نے کہا نہیں نہیں بھائی اس سے بہت زیادہ تھا، یہ تو اب کم ہو گیا. نہیں کم نہیں ہو گیا، ٹائم کے ساتھ بڑھ گیا ہے، بڑھ گیا. ایک دونوں کی ہم ایک دوسرے کی ریسپیکٹ. لیکن ینگ ایج میں کوئی کم نہیں تھا، کم نہیں. یہ تو ہے ہی نہیں کہ ینگ ایج میں یہ نہ کم ہو. ہاں وہ جو اگر آپ کا کوشچن اس طرف ہے
कि वो तू मैं लड़ाई वो तो झगड़ाई होती है, अभी भी होती है। वो तो अभी भी आप देखते हैं हर वीडियो में होती है। छत्रपतान क्या वो पंजाबी में खास लफ्ज होता है, कुत्ता पटान, छत्तर पटान, मतलब आर्गुमेंट और बोलना और करना, वो तो वो है। वो तो हमारी एक एक मिनट में होती है, बच्चे कहते हैं लो शुरू हो गया। मैं कहता हूँ कि वही एक चीज है, दैट इज द पार्ट ऑफ लव। मतलब अभी भी अगर होती है। आप लोगों को एक दूसरे को इतने अंडरस्टैंड करते हैं, इतनी प्यार और मोहब्बत है, तो आप फिर फ्रीली अपने एक्सप्रेशंस उनको देते हैं, वो इस आर्गुमेंट की शक्ल में और तू बक बक की शक्ल में, क्योंकि आपको ये पता है कि सामने वाला ऑफेंड नहीं होगा और इसके रिटेलिएशन में कोई ऐसा नहीं है कि वो बैग उठाएगा और चल देगा, चाहे बंदा हो, बंदे घर छोड़ के चले जाते हैं। ज़ैद ने मुझे पहली दफा ये कहा था, घर छोड़ के कभी नहीं जाना। हाँ, और मैं वो ज़ैद छोड़ के चले जाते हैं घर लड़ाई में। ये एक लेसन मेरा सबके लिए है मैं नहीं जाती घर। कि खातून, औरत, बीवी उसको शौहर को फील उसकी लेवल करके वो करेगी, या समझ लो कि उसको एक किस्म का मौका फराहम कर दिया कि अगर उसको अकेला छोड़ के और वो चली जाए, जैसे होती है ना बैग उठा मैं चल ली माँ पे, मैं चल ली माँ के। कभी ये मिस्टेक गलत ना करें, ऐसे हालात पैदा कर दें एज ए लाइटर नोट आप ले कि शौहर छोड़ के उसको निकलना पड़े इस घर से। अब जिस घर में आप आ गई हो ये शौहर का ही घर नहीं है, यानी वो अलग बात है, हमारा मुआशरे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अडॉप्ट नहीं करते और सख्तियाँ हैं, और अपना वो इज्जत को बंदों ने अपने उसके ऊपर लिया हुआ कि बीवी को प्रेस करके रखना, दबा के रखना। मैं ये कहता हूँ कि वाइफ जब आ गई तो ये घर अब उसके शौहर का नहीं रहा, ये उसका भी है। तो आप ऐसे हालात पैदा करें कि शौहर 2-4 दिन के निकल के बेशक चला जाए, आप बैग उठा के अपनी माँ के घर न जाने की कभी कोशिश ना करें। क्योंकि लोग फील करते हैं ना कि हाँ शौहर को, मुझे ज़ैद ने कभी कितनी भी शदीद लड़ाई हो, शदीद लड़ाइयाँ भी हुई, उसमें कभी ये नहीं कहा कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ से निकल जाओ, या मुझे ऐसा फील नहीं कराया कभी। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज जो तुमने की ना, ज़ैद जो है हमेशा खुद गुस्सा अगर बहुत शदीद हो, ज़ैद खुद वॉक करने चले जाते हैं, मैं निकल जाता कि इससे बेहतर है कि ये कुछ ऊट पड़ा, क्योंकि मेरी तो आपको पता मेनोपॉज में वो रुकती नहीं जुबान, ना जुबान रुकती है ना शक्ल रुकती है बनाने से, तो वो तो निकलती है, तो फिर ज़ैद खुद ही वॉक करने बेचारे निकल जाते हैं, चुप करके 1-2 घंटा वॉक करते हैं, वापस आ जाते हैं। और ये भी बड़ा इंसल्टिंग है, बहुत ही गलत है। जो कोई भी जो शौहर आम तौर पे अक्सर ये लड़ाई में हमारे देसी कल्चर में और पाकिस्तानी इंडियन कल्चर में, निकल जाओ तुम, निकल जाओ मेरे घर से। यार अब भी तुम्हारा घर है, 10 बच्चे हो गए तुम लोगों के, बीवी ने अपने माँ बाप बहन भाइयों को छोड़ के अपना बैग उठाया तुम्हारे पास आ गए, और अब आप बात बात पे उसको ऐसे कहते हैं ये मेरा घर है, निकल जाओ तुम अपने, दफ़ा हो जाओ अपने घर। ये बहुत कॉमन बातें हैं जो मैं ये कर रहा हूँ। और आप देखते होंगे इवन ड्रामों श्रामों में फिर वही बात आती है कि ड्रामे सारे ड्रामे ही नहीं होते, कई मरतबा तो मैं कहता हूँ तो ये ड्रामा ही है, लेकिन उसमें रियल लाइफ से भी बहुत सारी टिप्स जो है वो लेते हैं और लेके उसको उसमें बताते हैं। एक्सट्रीम पे नहीं बताना चाहिए, जो मेरा खिलाफ होता है, इसलिए मैं ड्रामे देखता नहीं हूँ कि बहुत एक्सट्रीम चीजें जो दिखाते हैं ना, माहौल का पता चलता है ना आपको। अब हर चीज तो मीडिया पे है, तो फिर ड्रामों में क्यों नहीं बताया जाए एक्सट्रीम पे। तो लेकिन ये कि ये बिल्कुल गलत है कि आप जरा सी लड़ाई हुई जरा निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, और यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है, तुम जहेज में नहीं लाई। अब ये जो बातें हैं ना, अल्लाह इससे बचाए सबको। और मैंने क्या हिदायत किसी को गाइड क्या करना, मैं तो खुद ही पटड़ी से रास्ते से भटका हुआ। लेकिन मेरा मकसद कहने का कि ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ का हिस्सा है, और शुक्र है कि मैं फिर ये कह रहा हूँ कि कुछ लोग जो तो लड़ते तो रहते, लड़ाई अपनी जगह पे है। मैं बात कर रहा हूँ उस लड़ाई के अंदर, उस जंग के अंदर आप इतने कन्वेंशनल कहते हैं ना, कन्वेंशनल जो आपके जो है वो टूल्स हैं या असला है, उससे लड़ते रहें। लेकिन अगर आप उसके ऊपर न्यूक्लियर के ऊपर आ जाए तो फिर बाकी बचेगा क्या। सो इसलिए ये हमारी कन्वेंशनल उससे लड़ाई है, असले से होती है, और फिर वैसे के वैसे। लेकिन अगर वो न्यूक्लियर माने वाइफ छोड़ के चली जाए और शौहर बीवी को छोड़ दे, और तो फिर तो खत्म होगी चीज सारी। फिर तो खत्म हो गई। और आजकल जो पेरेंट्स है पीछे, उनको भी सेंस, हमारे तो अब्बू कहते थे बस वही घर है, जो भी है बस वही है। तो ये है कि यही है, लेकिन ये यहाँ पे मैं वो भी करूँगी, डिस्करेज भी करूँगी कि पेरेंट्स ये खैर आपकी चाय ठंडी, मैं पी रहा हूँ। जो पेरेंट्स पीछे बच्चों को पूछते भी नहीं है ना, बच्चियों को नहीं पूछते, उनके लिए भी लम्हा फिक्रिया है, क्योंकि इतने वाकयात हुए हैं यहाँ पे, वो इसी वजह से हो गए कि पीछे पेरेंट्स ने उनको जाके देखा नहीं, बच्चों को सपोर्ट नहीं की, सपोर्ट नहीं की, और इतनी
بے دردانہ ہوتے ہیں کیا ہوتا ہے, بہت بری طریقے بے سے بے دردی سے ان کو بچیوں کو ابیوز کر کے فزیکلی اور ان کو ٹارچر کرنے کے, ان لاز نے, شوہر نے تو چھوڑ رہے ہیں, ان لاز تک نے کیے, ان کی بہنوں نے ماؤں نے مل کے, تو مطلب کیسے لوگ کرتے ہیں یہ. تو خیر کہاں کی بات کہاں چلی گئی. تو یہ ہے کہ ناشتہ یا چائے بنانے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہو جاتا, اور اس میں کرنا چاہیے. میں اسامہ کو بھی کہتی ہوں کرو, اور عزیر تو ہمارا بالکل شروع سے ہی نہیں کرتا. میں اس کو کہتی ہوں عادت ڈال لو اس سے پہلے کہ تم اپنی بیوی کی خدمت کرنے لگو اور ماں کی نہ کرو. بات ہماری تو وہ کرتا ہے, لیکن خود اپنے سے وہ اٹھ کے کوئی چیز ایسے پکانا کرنا زیادہ وہ نہیں کرتا. تو میں اسے کہتی ہوں کرا کرو تاکہ آگے تمہیں کام آئے گا. وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کرتا یہ. تو سب یہی کہتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن زید کی فیملی میں شروع سے ہی ہے, یہ لوگ گھر میں کرتے ہیں, ان کے دوسرے بھائی بھی کرتے تھے, یہ بھی کرتے ہیں. ان لوگوں کو وہ نہیں ہے کہ بچے کیوں اٹھائے ہوئے ہیں یہ وہ, جیسے کئی لوگوں میں ہوتا ہے کہ بچے بھی نہیں سنبھالتے. ہاں بچے نہیں سنبھالتے. زید نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. زید ہمارا تو اسامہ کو دیکھیں ماشاءاللہ بچیوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ بس کوئی اور کیا. مجھے وہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ بیٹیاں دونوں ظاہرہ اور الینا, وہ یقین کریں وہ ثنا کے ساتھ اتنا نہیں ہوتی ہیں. اسامہ ہوتا تو ایک ادھر لیٹی ہوئی ہے, ایک ادھر بیٹھی ہوئی ہے, خوشی ہوتی ذرا سا وہ اسامہ ہلتا ہے بابا بابا کرتے ہوئے, الینا ہے تو خاص طور پہ چھوڑتی نہیں اس کو. تو اس لیے یہ ماحول اس نے یہ اپنی پرسنالٹی بچوں کے سامنے یہ شو کی ہے. تو بچے اس طرح ہے نا, بس اس کے پیچھے 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 پیچھے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ماں نہیں کوئی دیکھتی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارا جو معاشرہ ہے, جو ڈومینیشن جو مرد کی یا بندے کی یا شوہر کی, میں اس کے سینس میں بات کر رہا ہوں. اسامہ سارے کام بچوں کا کرتا ہے, چاہے وہ ڈائپر چینج ہو, چاہے کچھ ہو, کپڑے پہنانے ہیں, اس کو لے کے جانا کہیں, ثنا نہیں ہے تو سب وہی کرتا, اور اگر وہ نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر. تو میرا مقصد کہنے کا میری عادت چلو وہ تو کہیں کہ ایڈوانس کنٹری, اس کنٹری میں ہوتے ہوئے میں شروع سے ایسا تھا, اور مجھے بہت سارے رشتہ داروں کی یہ باتیں سننی پڑیں, اور ایسے رشتہ دار جن کو پھر میں ان سے بڑا, چلو میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل وہ میں کٹی, لیکن میں ان سے بڑا فاصلہ کرتا تھا کہ اس کو ذہنی پرابلم ہے اس بندے کو, جو یہ کہتا ہے جہاں بڑھیا دا کام وہ مطلب بندے کر رہے ہیں, بچے نو چکی پھردا بڈھی بیٹھی ہے گلاں کر رہی ہے, یہ بچوں نو کھلا رہا, اور بچے کھلا رہے, بچوں پہ پیدا کرنے کا شوق تھا مجھے. اللہ میاں ایسے بچے دے دے, یہ بیٹی بھی دے دے, بیٹا بھی دے, دعائیں تو مانگتے ہو آپ, اور اس کے بعد جب دنیا میں آ گیا تو اس کے بعد کہیں کہ اب یہ سنبھالے ماں, لاڈ پیار آپ کر لو, باقی کام ماں کرے. یہ کیا بات ہوئی؟ تو میں پاکستان میں یہاں ہوتے ہوئے بھی مجھے جو ہے وہ کچھ ہمارے رشتہ داروں میں یہ باتیں میں نے سنی بھی, ایسے نہیں کہ کسی نے کہہ دیا میرے سامنے کی بات, تم تو بس جو ہے وہ بچوں کے اس میں لگ رہے تھے, زن مرید اور بیوی مرید, بیوی کا غلام مرید, یہ تو عورتوں کا کام, ان کو کرنے دو. میں کہا اچھا. یہ ہوتا ہے کہ اٹس ویری ہارڈ ٹو کیپ اے ریلیشن شپ آپ کا, اسپیشلی یہ آپ آج کل آپ وہ جمع تقسیم دیکھ رہے ہوں گے ڈرامہ, اس میں بھی تھوڑا سا ان لاز, جوائنٹ فیملی, اس طرح کی کچھ چیزیں دکھائی ہیں. اس میں وہ جو مدر ان لا ہیں وہ نائس ہیں بہت, لیکن وہ کیا ہے کہ اپنا آئیڈیا پوز بتاتی ہیں, تو وہ میاں بیوی میں انبن ہوتی ہے, اس طرح کی باتیں. میری یہ عادت ہے کہ میں کبھی بھی ثنا کو اپنا آئیڈیا دیتی ہوں, لیکن اسے کہتی ہوں 100% تم اپنی مرضی, باقی مرضی اپنی کرو. لیکن اور ماشاءاللہ میں اور ثنا 7 سال ساتھ رہے ہیں, 6 سال ساتھ رہے ہم لوگ. ہماری بہت بنتی ہے, ابھی بھی بنتی ہے, مطلب ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم کالز اور یہاں ہوتے ہوئے بھی فون پہ بھی, وہاں ہو تو فون پہ آنا جانا کرنا. کوئی چیز بھی میں نے لینی ہو, اور وہ لائبہ کے ساتھ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا, لائبہ کے ساتھ جو میرا ریلیشن شپ ہمارا ہے وہ تو ذرا بیٹی اور ماں کا ہے, وہ تو کبھی ختم نہیں ہوگا. اصل بات تو ہے کہ دوسرے کی بیٹی کو بیٹی کی طرح آپ کرو نا. کتنی زیادہ ہم دونوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے, بہت زیادہ. اور اس میں بھی ظاہر ہے سب وہ بھی اچھی ہے, تو میں مطلب تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہاتھ سے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ شادی کرتے ہیں, کسی کی بیٹی آتی ہے گھر پہ, تو آپ اس کا وہ خیال کریں. پھر وہی بات ہے کہ جوائنٹ سسٹم کے فائدے بھی بہت ہیں اور نقصان بھی بہت ہیں. بہت سارے کلچر میں, جیسے مجھے کسی نے کہا تھا کہ مڈل ایسٹ میں ایسے کئی مرتبہ وہ شادی سے پہلے وہ اپنا گھر اس نے بنانا ہے, سیٹ کرنا, چاہے اپارٹمنٹ, چاہے دولہا سیدھے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کنٹری کا مجھے نہیں پتا تھا یا نہیں تھا, یہ تو ہماری اپنی آفر ان کو تھی. ہم نے کہ شادی جب اسامہ اور اس کی تھی ثنا کی,
हमने कहा आप सोच लो अगर आपके ज़हन में इस किस्म का तो हम पहले ही ये बंदोबस्त कर लेते हैं अपार्टमेंट तो आपके सामा लिए। यंग भी बहुत था, बहुत छोटा था, और खैर बहुत अच्छा टाइम गुजर गया। और इस्लाम में भी है कि आप अपनी वाइफ को अलग से दें, ये है ही नहीं इस्लाम में कि आपने ज्वाइंट फैमिली, अनलेस है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते वो और बात है, लेकिन आपकी अगर वाइफ ने आपको कहा है कि आपने अलग रहना है। हाँ तो फिर इसमें कोई वो हर्ज नहीं है कोई। अच्छा, मैं जब तक यहाँ रही हूँ मैं ज्वाइंट फैमिली में रही हूँ, यहाँ हम ज्वाइंट फैमिली में रहे। मैं ज्वाइंट फैमिली में रही हूँ और बहुत अच्छा टाइम गुजरा है मेरा यहाँ पे माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, मेरी सास भी बहुत अच्छी थी, जेठ ये सब बहुत अच्छे थे, मेरे सब लोग मेरे साथ कोऑपरेट करते थे क्योंकि मैं सब में एज में छोटी थी, तो वो मुझे भी बच्चों की तरह ही लेते थे। और कहाँ से कॉमेंट से बात शुरू हुई थी जैद की और कहाँ तो पहुंची। मैं वो असल में वो देख रहा हूँ कि मुझे एक चीज़ और याद आई थी, वो सना का जो मैंने दिया ना उसके साथ एक और था तो उसको भी मैं वो हाईलाइट करना। तो जैद ये है कि अब इस पे आके थोड़ा सा वो ओपन माइंड हो गए, लेकिन जैद हमेशा वो लगते हैं बड़े खड़ूस, हाँ, गुस्से खड़ूस वाले, खड़ूस क्या खड़ूस। तो लोग बहुत डरते थे कि जैद कैसे होंगे ना, बड़ा जैद परफेक्ट कैसा, हाँ। लफ्ज़ यूज़ की था उससे। तो जैद वो गुस्से में हमेशा नजर आने वाले, तो लोग बहुत वो उससे बात करते थे जैद को, लेकिन जाहिर है हर कोई अब जैद थोड़े से खुल के सामने आ गए हैं, तो अब लोगों को परेशानी होती थी क्या हो रहा है। अच्छा वो मैं भूल ना जाऊँ तो ये सना ने जो कमेंट दिया था उसका तो मैं पूरा अकाउंट बता चुका, तो उसको इंडोर्स किया उसने अकाउंट, क्या नाम है कि माहरुख फैसल 265, तो उन्होंने फिर इसको कहा कि सेम क्वेश्चन मेरे माइंड में भी जहन में भी आया था कि फिर वो आगे कहती है कि पापा दैट यू नीड टू एक्सप्लेन इट, यू नीड टू रिप्लाई इट, तो फिर मैंने एक्सप्लेन कर दिया तो वो सबके लिए हो गया। तो कई मरतबा कई कमेंट बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको हर कमेंट को नेगेटिव वे में, लेकिन जो नेगेटिव कमेंट है उसके लिए तो मैं यूं करके बैठा होता हूँ, यूं करके यकीन करें उसको फिर हाइड कर देता हूँ। तो इसलिए ये आप कमेंट देते हुए थोड़ा सा किसी के जज्बात का थोड़ा सा वो लिहाज करें आप। फिर कई लोग जो उसके ऊपर आ जाते हैं मजहबी, इतनी मजहबी चैनल बहुत सारे हैं, आप वहाँ चले जाएं, आप उनको फॉलो कर ले, क्योंकि यहाँ ये या फिर इंग्लिश की तस्वीर के लिए आंटी ये इंग्लिश गलत बोलती हैं, ऐसे बोलते हैं, तो इंग्लिश लर्निंग चैनल तो है नहीं है जितनी है आंटी इंग्लिश गलत बोलती वो कहीं कहा मैं डिलीट कर देता हूँ, तुम तक नहीं पहुँचने देता हूँ, क्योंकि मैं फायर वाला तेरे बेचा होता और जो कमेंट देने वाला उसके जो गलत बोल रही होंगी वो किसी वजह से ही बोल रही होंगी, हो सकता है जितना मैं विच वो कई मरतबा लफ्ज़ तुम्हारे मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है। अगर कोई भी कोई अंग्रेजी टीचर नहीं लगी हुई, अंग्रेजी नहीं पढ़ा रही, सो इस किस्म की चीज़ें हैं। तो चलो बात असल में अच्छा दो क्विकली आज में चलो इस वीडियो में कवर कर। एक तो बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था वो तुमने बता दिया कि शादी, ये थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक हुई है कि हमें स्टार्ट में तुम्हें बताना चाहिए था कि मेरी नीस, इसकी जो छोटी बहन, इससे जो छोटी बहन है उसकी जो फैसलाबाद उसकी बेटी की शादी थी, ठीक है, उस घर में भी ये पहली शादी थी। दूसरा आज ही कमेंट्स मैंने देखा लोगों ने दो ने मेरा ख्याल उसमें कहा बोला भी ये तो आप तो हर 4-5 महीने के बाद तो यहाँ होती हैं, तो फिर ये एक्साइटमेंट और ये कैसी शायद, चलो उनके में उसके कमेंट को भी मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। और वाकई जो बंदा 4-5 महीने में आएगा तो उसमें इतना ये उलगबड़ा थोड़ी बंदा मरा जा रहा, मिलने को तरस रहा और हम हाइड सी खेल रहे, बात ये नहीं। बात बिहाइंड ये था कि उनकी फैमिली की पहली शादी घर में, और जब ये बात हुई दावतनामे आए तो उस वक्त हम वो कनाडा में थे, तो हमने आसफा ने कहा कि जो हमारे लिए अभी मुश्किल है फौरी जल्दी आना, लेकिन मैं शुरू से इसको कह रहा था, मैंने कहा मुश्किल कोई नहीं, भले मैं अभी 4 महीने पहले तो गई थी हज, हाँ, और इतना लंबा सफर करके तो मेरा दिल नहीं था। हाँ, मैंने कहा भले 1 हफ्ते के लिए भी जाना, लेकिन शादी या चलो अटेंड कर लेना आपने, ठीक है ना। तो अभी उसके पीछे बड़ी सी लंबी स्टोरीज है, कभी वो अगर शेयर की जरूरत हुई तो कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मैंने कहा इस शादी को आपने लाजमी अटेंड करना है। लेकिन हमने किया क्या, हमने आपस में ये प्लान करके मैंने कहा नहीं ठीक है, फिर उनको हम जो है इनको किसी को नहीं बताएंगे, इनको सबको कह दो मैं नहीं आ सकते, सब ने पूछा। हाँ, इसके पीछे ज़ैद का ये माइंड सारा ये ज़ैद था मेरे तो सबसे पूछ के पहले इसको फोन जाते थे, कब आ रहे हो, आना, शादी का बता दो, हमने अकाउंट से जोड़े खरीदे जैसे बहनों में होता है। तो इसने कहा नहीं भाई मैं आ नहीं सकती, मेरी अपने अभी तो मैं आई हूँ, मेरे घर के काम है, मेरे पोतियाँ मुझे नहीं छोड़ रही, तो मेरे लिए मुश्किल है। करते सब ने वो कर लिया। फिर एक टाइम पे यानी वो जैसे मिन्नत अल्लाह होता है, जिनकी शादी है उनको तो उनकी तो ख्वाहिश है ना कि भी ये हमारी शादी में अटेंड करें, और पहली शादी उस घर की, तो उनकी भी इनकी बहन की भी बातें जब भी, तो इसने कहा मैं देखूंगी, कोशिश करूंगी, ये करूंगी। तो सबके जहन में जैसे दिन करीब चले गए, करीब आ गए,
तो फिर फाइनल हो गया कि नहीं यार, अच्छा फिर राब्ता, मैं चूँकि यहाँ था, हर एक का फिर फ़ोन मुझे आए कि अब ये इससे सही पता लगा। मैंने कहा भाई प्रोग्राम उसका नहीं है, मैं इस हक में हूँ कि उसको आना चाहिए, मैं उसको कह रहा हूँ आ जाए, लेकिन वो फ़िलहाल नहीं आना चाह रही। तो उसको वो कहती है मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर मैं वापस आऊँ। तो इसलिए ये एक्साइटमेंट की जो आप बात करते हो, ये इसलिए ये उनसे पूछो जिनके घर में शादी। मैंने अपनी जब फौरी टिकट कराया तो उसके बाद करके ये इनका तो इसलिए ये सारी एक्साइटमेंट का रीज़न जो है सरप्राइज, बहुत सारे ये क्या सरप्राइज। दूसरी बात एक और, क्योंकि मेरी बहन का अभी तो वो पार्ट काट दिया गया है जहाँ पे वो बेहोश होगी, वो 2 दफा गश खा गई, क्योंकि इत्तेफाक है कि देखिए इतने लोग घर में, एक गेट खोलने वही आ गई, वो गेट खोलने वो आ गए। अच्छा, वो देखते ही उसकी तो चीख निकली और साथ ही वो भी। अच्छा, ये भी है कि उसको थोड़े से इस किस्म के भी हेल्थ के थोड़े इशू की वजह से भी होता है। ये किसी ने सही कहा कि इस किस्म का सरप्राइज और शॉक भी किसी को देते हुए भी थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखो। भी हुआ हुआ है, तो उसको सांस की इशू है, तो इसलिए ये भी किसी ने कहा कि अगर ऐसा करना था तो इसमें ये भी इसमें होता कि डोर पे वो ना आती, कोई दूसरा आता, उसको सिलो पता लग जाता कि ये आई हुई है। वो तो एकदम उसको शॉक लगा। खैर, तो इसलिए ये एक्साइटमेंट ये इतनी ज्यादा ये सारी बढ़ी कि और अभी तो इन्होंने वो तो फिर जाहिर है सबको अपनी पड़ गई, रोने धोने जो हुए वो तो सब मैंने काट दी, क्योंकि कुछ हमारी अपनी काट नहीं दिए, वो मेरे अपनी फैमिली के लिए, हमारे लिए वो है यादगार फैमिली के लिए। ठीक है, मैं वहां नहीं लगा सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। और ये सरप्राइज मैं कहती हूँ कि किसी के लिए नहीं था, ये सिर्फ मेरे बहन भाइयों के लिए। हाँ, एक्चुअली बहन भाइयों के लिए था। और जो खुशी उनके चेहरे पे आप देख रहे हैं ना, उससे ज्यादा उनके वो मतलब खुश थे, उससे ज्यादा वो मेरे बहन भाई खुश थे। तो ये होता है, खून की मोहब्बत होती है। लेकिन उसमें मैं ज़ैद का शुक्रिया क्या करना चाहिए, किस चीज़ का शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन ये है कि एफर्ट्स मेरे थे उसको बुलाने में, और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स बाद में भी किए, मुझे पहुंचाने में, मुझे करने में। ये भी नहीं एफर्ट्स किए, फिर हमने लड़ाई भी की ट्रेन में। ट्रेन में बैठ के लड़ाई कर ली फिर हमने। ट्रेन में, गाड़ी में बैठ, ट्रेन में बैठ के जब करीब वहां से जब वापस आए। हाँ, ठीक। तो ये है कि हमारी ऐसी चलती भी है, तो ये नहीं है कि सारी वही चलती है। हालांकि इतनी एफर्ट ज़ैद ने की, फिर मैं ज़ैद पे गुस्सा निकाली, क्योंकि मुझे गुस्सा ट्रेन पे था, निकालना मैंने ज़ैद पे था। ज़ैद ने आगे से ओखा होकर बोला, मैंने कहा जाओ भाड़ में तुम। अच्छा भाई, अब ट्रेन देखो, ट्रेन से मुराद है कि उस जिस दिन इन्होंने आना उस दिन टिकट नहीं मिल रहा फैसलाबाद से। टिकट 2-3 दिन के बाद जो थी फ्लाइट उसमें मिल रहा था, और वो भी आप यूँ समझ लो एक तो डबल पर। देखो खाम खा भी इंसान को ऐसे पैसे हमारे पास, खुदा का शुक्र है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी गलत 2 नंबरी से वो आया हो तो बंदा का कोई बात नहीं, दे दो। मैं 100 दफ़ा सोचता हूँ कहीं ऐसे पैसा वो लगाने में, उसमें अब वो दुगनी कीमत का वो टिकट मिल रहा फैसलाबाद से, पर उस तारीख का भी नहीं मिल रहा था जो हम चाह रहे थे। जिस दिन आना, वो जिस दिन आने को वो मिला। अब ये कहते हैं शादी वाला घर है, मैं वैसे बहनों के भले में हफ्ता भी बैठी रहूं, अब शादी में उनके आगे उनके इन लॉ जो लड़की के बच्ची के, उन्होंने को आना, इन्होंने उनकी तरफ जाना, मैं बीच में बैठी होंगी। इसका मेन फोकस ये था इस दिन का, नहीं मैं 2 दिन भी अब रुक नहीं सकती, मुझे आना चाहिए। मैं फिर बहनें इनकी कहने लगी अच्छा कि भी ट्रेन, वो सारे कहें भी ट्रेन में तुम सफ़र, भी ट्रेनों में सफ़र इस कंट्री मुल्क से गए बेशक कम किया। आप ये सोचें, बस का सफ़र ज़िंदगी में जब से हमारी शादी हुई है यहाँ पाकिस्तान में, कनाडा में तो किया ही नहीं, लेकिन पाकिस्तान में शायद एक दफ़ा हम यहाँ से डिग्री गए थे बस में, जस्ट 1 टाइम। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बस में बैठते कैसे हैं, चढ़ते कैसे। एक दफ़ा यकीन करें बस में ज़िंदगी में बैठी है, मीरपुर खास से डिग्री तक बस। और इसने कभी ट्रैवल बस में बैठी नहीं, ट्रेन में कभी ये बैठी नहीं, तो इसके लिए थोड़ा सा इसलिए वो था, ये नहीं कि ये बाहर चली गई तो नहीं बैठता। जिंदगी में वैसे ट्रेन में गई हूँ, साथ का नानी के साथ ट्रेन में गई थी, सात का बाद शादी थी, नानी नानी। अच्छा, अब मुझे इसका नहीं पता, चलो सात का बाद गई थी वो जमाना कब की बात, अब 50 साल पहले की बात कर रहे तो मतलब यूँ समझ लो 20-25-30 साल की तो होनी हो तो। अच्छा, ये सारी चीज़ें करके ना, अच्छा फिर मैं अब लंबी होगी बात में कहना क्या चाह रहा। दूसरा ये कि वीडियोस में भी अब इसमें देखो फैमिली को जहाँ नहीं दिखा रहे हैं तो आप समझ लें, अंडरस्टूड है ये कि ये फैमिली को जिनको जो देखो पर्दा करना चाहे, जो मीडिया या नॉर्मली इतने लोगों में मैं किसी से नहीं पूछ सकती, वहाँ पे किससे पूछे बंदा, सिस्टर के इन-लॉज हैं, फिर नए शादी वालों के इन-लॉज हैं, मैं किस को पूछती कि आपने वीडियो में आना कि नहीं आना। मैंने बेटर ये समझा कि मैं किसी को भी नहीं पूछो रखूं, और
तो आप अप्रिशिएट करें कि मैंने इतने उसमें भी मैंने वीडियो बनाई, उन वीडियो को उसके बावजूद उसको एडिटिंग कितनी बढ़ जाती है। क्रिटिसाइज करें मुझे हालांकि ज़ैद ने कहा था कोई जरूरत नहीं है वीडियो वगैरह बनाने की, अपना एंजॉय करो, टाइम स्पेंड करो। मैंने कहा वो रिश्ता जहाँ उस बच्ची का हुआ बाहर की फैमिली है, कोई रिश्तेदारों में नहीं है, उनका माइंडसेट क्या है उनके ज़हन में, तो अच्छा नहीं होता ऐसे कि आप कैमरा लेकर बनाना शुरू कर दें। हाँ, अपने रिकॉर्डिंग के लिए तो इन्होंने किया है, इनके पास है अपनी रिकॉर्ड, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए बेशक है, लेकिन उसमें वीडियो में लगाने के लिए वो नहीं है कि वो, इसलिए ये जो रात वीडियो लगी है ना उस वक्त, उसमें भी मैंने देखा वो कहीं टांगे पकड़ी हुई हैं, कहीं घुटना है किसी की बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। बना सकती थी क्योंकि हर तरफ पीछे भी लोग खड़े थे, सब खड़े हैं पीछे। होता है ना कि मैं अपने मुंह पे कर लूं, और बिल्कुल अनजानी शादी हो तो चलो उसमें नहीं, लेकिन अब ये तो ज़ाहिर फैमिली की है तो सब देखेंगे, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो अगर मैं रिस्पेक्ट उनकी करती हूँ जो मुझे कह देते हैं, और जिन्होंने नहीं कहा तो उनकी ना करूँ तो ये गलत हो जाएगा। और एक दिलचस्प चीज़ और के लोगों को, कई बेचारे हैं उनको मेरे जैसे उनको नहीं पता होगा, देखें जब वीडियोस डिले फिर अच्छा एक वो रोज कमेंट आ रही, आपने ये क्या बनाया हुआ, क्या आपके रिश्तेदार कोई आपको फॉलो नहीं करता? जैसे आप लोग कह रहे हैं ना, मुझे पता है मेरे उस पे भी आया, मैं जाके जवाब दूंगी टिकटॉक पे, क्योंकि आप लोग ये टिकटॉक है इंस्टाग्राम में, आप लोग ये समझ रहे हैं कि मेरे बहन भाई, हाँ कई लोग नहीं भी करते होंगे, देखते होंगे, रिलीजियसली नहीं देखते, यहाँ पे हर एक का अपना है, लेकिन ज्यादातर बहन भाई मेरे देखते हैं। लेकिन उनको जब आप लोगों को भी उसी वक्त पता लगा, उनको भी उसी वक्त पता लगा। डिले पे जब वीडियो भी हमने डिले पे कर दी, आप रोज की उसी वक्त की नहीं लगा रहे, शादी होने के हमने जब बाद में लगाई है, तो फिर उनको कैसे पता लगेगा? ये सिर्फ उनको है जिनको ये सोशल मीडिया का या इसका या यूट्यूब का उनको ज़हन में नहीं है कि ये पब्लिक हुई है, तो वो समझ लें कल हुई है, तो इनको कैसे नहीं पता क्या ये वीडियो। आज मैं उसको 10 दिन हो गए, वही मैं पढ़ के मैसेज, 3-4 लड़कियां हैं या लड़के हैं जो वो मैसेज, क्या आपने बनाया हुआ, ये कौन सा, क्या आप वीडियो नहीं देखते, क्या उनको आपने ब्लॉक किया हुआ, क्या वो आपको फॉलो नहीं करते, आपके रिश्तेदार ही आपको फॉलो नहीं। तो मकसद उसका ये है कि ये वीडियो डिले पे, शायद हम शुरू में कहीं रिश्तेदारों से उनसे मैंने साइन तो नहीं करवाया कि उन्होंने मुझे फॉलो ही करना है। नहीं भी किया होगा, नहीं किया, कोई बात नहीं, कईयों के पास नहीं करना चाहे नहीं करे, शौकीन देखने की, तो इसमें क्या है। तो ये सारी कहानी माशाल्लाह वीडियो काफी वो बोलते बालते तो कहाँ तक चली गई इस वक्त। चलो बस आप लोगों को सिर्फ जो था ये ज़ैद और मेरा ही ज्यादा पूछ रहे थे आपको, तो हाँ वो कमेंट तो चले अच्छे तो बता दिए, बुरे ये बता दें कि हमारी ट्रेन में जब तू मैं हुई तो फिर दूसरे दिन बात की, मैंने भी फोन बंद कर दिया, ऑफ करके रख दिया, क्योंकि मैं खैर वो भी वैसे भी उसमें इंटरनेट नहीं आ रहा था। तो इंटरनेट जब आया कहीं से तो मैंने कॉल की, क्योंकि संबर अपने हस्बैंड को उनके कॉल आ रही है, आमिर की कॉल, इनकी सबकी आ रही, मैंने ज़ैद को कॉल कर ली। अच्छा, कहा क्या मैंने ये बताओ, कहा मैं इतनी अनॉयड थी क्योंकि इन्होंने वो बर्थ जब खोली ना तो मुझे घबराहट हो रही थी, मैं लेट नहीं सक रही थी वहाँ, क्योंकि मेरी आदत है लंबा बैठने की, 17-18 घंटे हम लोग आराम से बैठ जाते हैं प्लेनों में। अब ये लोग कहें कि नहीं लेट जाओ थोड़ा आराम हो जाएगा, मुझे तो घबराहट, और मैं वाकई जाग रही थी। अब असल पॉइंट पे आओ कि फोन क्या तुमने कहा और मेरा जवाब क्या था। मैंने क्या कहा था मैं बताता हूँ। आप देखें कई ये इत्तेफाक भी हो जाता है, कई मरतबा बेगम चाहे अपने मैके गई हुई, चाहे कहीं बाहर गई हुई है, कॉल आती है, अगर आप कहीं बिजी तो आप कहते हैं भाई अभी मैं ये जरा बिजी हूँ, अभी मैं रोटी बना रहा हूँ, अभी मैं बाथरूम में हूँ। उससे पहले 2 दफा आसवा की कॉल आई, तो मैंने कहा 1 मिनट में कॉल करता हूँ, मैं अभी जो है ना ज़ाहिर बंदा, अब मैं इस यहाँ बैठ के बताऊँ कि मैं वुज़ू कर रहा था, मैं या शावर ले रहा था, लेकिन मैं बाथरूम, तो मैंने कहा अभी निकला हूँ, ज़ाहिर मैं बाथरूम से निकला तो देखा कॉल बजी, इत्तेफाक, तो मैंने कहा मैं अभी जो करता हूँ। बाद में नमाज पढ़ी, जहन से थोड़ा सा निकल नहीं गया, लेकिन बाद में मैंने रिप्लाई किया, ये नहीं कि कॉल नहीं की। 1 दफ़ा हो गया, दूसरी दफ़ा मैं कहीं बाहर था, मैंने कहा मैं अभी बाहर बैठा हुआ, तुम्हारी कॉल अभी आई है, अभी मैं बाहर हूँ, शोर बहुत हो रहा, घर जाके कर लूँगा। 2 दफ़ा हो गया, 1 दफ़ा, ये कुछ चौथी दफ़ा इनकी ट्रेन से जैसे कॉल आई, मैं क्या हजे तेरा अच्छा देखो मेरे कमेंट देखो, मैंने कहा तेरा व्लॉग अभी मैंने लगाया है और तुम्हारी कॉल आ गई। तो इसने तो मेरी कॉल का तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो जाता है, मेरी कॉल आ गई तो बस रहने दो, तुम व्लॉग देखो, व्लॉग भी तुम्हारा देख रहा हूँ।
मेरा ब्लॉग देखो। आपको पता है ये अब जब ये मेनोपॉज, इसीलिए तो कहते हैं मेनोपॉज का कुछ पता नहीं कि वो किस वक्त आपको, क्योंकि मैं इरिटेट ऑलरेडी हो चुकी थी, बस ट्रेन लेट थी हमारी 1-1.5 घंटा, सोचो सही। ट्रेन की सिचुएशन देख के। अब बहनों को मैंने दिल में कसम खाई थी इनको कंप्लेन नहीं कंप्लेन नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि तुम कंप्लेन नहीं करना। कंप्लेन की तो फिर उधर एक कॉकरोच नजर आ गया था मुझे इतनी घबराहट हो रही थी। और वो मैंने कहा चलो जैद से बात करती हूँ, थोड़ा हौसला देगा। हौसले के बजाय जब इसने ये कहा नहीं, मैंने अब देखो नॉर्मल बात की, मुझे क्या पता ये सड़ी बैठी हुई है। मैंने कहा भाई बस अभी तुम्हारा ब्लॉग लगाया है मैंने और तो तुम्हारी कॉल आ गई। देखो ये नहीं मैंने कहा कि मैं बात नहीं कर सकता, उसको बटन इतना मौका नहीं इसने दिया कि मैं उसको बंद कर दूं। हाँ बस मेरी कॉल आ गई तो प्रॉब्लम हो गया, बाकी जो मर्जी कॉलें आए ये हो गया। और ये नहीं, मैं ट्रेन के अंदर बैठी हुई इधर यूं करके चलो ठीक है तुम पहले ब्लॉग देखो फिर बात करेंगे। हैंग कर दिया। तो वो कहती, बाद में इसने बताया उसकी बहन ने, क्या हो गया तुमको, जैद भाई से लड़खाम खा उसके ऊपर चढ़ाई कर रही है बगैर वजह, क्योंकि उन्होंने सुना वहां के क्या बात हुई क्या। कहने लगे वो कह रहे तुमने मेरा ब्लॉग देखो। सो तो ये है, भी होता है। ऐसा ना समझो कि ये बहुत ही जानो मानो बस इनोसेंट सी है, ये बड़ी खतरनाक चीज है। ये देखो एक सर्वे है, चाहे ये वीडियो लंबी होगी लेकिन इसमें काफी इंफॉर्मेटिव है। एक सर्वे अभी आया है, वो बल्कि मैं लगाऊंगी, मैंने वीडियो सेव की हुई है, मेरे सामने आई थी वो। और ये रिसर्च इन्होंने बाहर के मुल्कों में हुई है। 70% जो आपके जो घरों में लड़ाइयाँ होती हैं आफ्टर 50 होनी शुरू हुई, क्योंकि औरत के हार्मोन्स चेंज होने लगे, जो चेंजिंग आती है, जो आपके मेनोपॉज में ये हम लोग यहाँ पे बहुत लाइटर लेते हैं। और आप देखें आजकल ये रुझान है कि ओल्डर कपल्स में सेपरेशन और ये सब हो रही है, क्योंकि हमारे आदमियों को इतनी घरों में वो नॉलेज नहीं दी गई। अब ये है कि जैद बाहर रहते हैं या बच्चे बाहर रहते हैं तो उनको अवेयरनेस है, ये सब कुछ है। लेकिन जो ये उसमें आ जाते हैं ना कि नहीं मेनू जवाब देता ना, तो ये देखें अब मैं स्वेटिंग शुरू हो गई। तो मतलब ये औरत का वो कहते हैं कि इतना चेंजिंग जोन है। और मेरा डबल इसलिए होता है कि मैं ऑलरेडी आर्टिफिशियल हार्मोन्स पे हूँ, जो वो खाती है, ये थायराइड की जो पिल खाती है। हाँ, तो वो मैं ऑलरेडी उस पे हूँ, तो मेरा डबल होता है। लेकिन जैद की पेशेंस है, वो बर्दाश्त करते हैं, अब वो वाकई शाबाश है। तो मैंने पता चला मैं उधर बर्दाश्त किया। अरे भाई मैंने तो तुम्हारा व्लॉग नहीं देखा, मैंने इसका व्लॉग ही नहीं देखना, नुकसान पहुंचाओ इसको यूट्यूब के थ्रू, मैं बंद कर देता। उसमें क्या पता चलता है कि देखा कि नहीं देखा। तो ये होता है कि ये आप अपने घर में जो आपकी पेरेंट्स हैं आपकी। अच्छा फिर मेरा जवाब भी देखें, मैं जो जट्टी थी बड़ी खरदमाग है। वो एक फिल्म में डायलॉग होता था, आसिया बेचारी मर गई, वो अदाकारा जो कोई भी बात होती थी ना उसको कुछ समझाने लगते या कुछ करने लगते तो कह लो जट्टी थी आप बड़ी खरदमाग है। तो जट तो आप बड़ा खरदमाग है। उसके बाद मैंने पूरे रास्ते में हमारी कोई कॉल नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, या हैदराबाद पहुंच गई। हैदराबाद पहले से ये तय था कि इसने बहन के घर चली जाना है, मैंने वहाँ से इसको पिक करना है। तो अब मैंने इसके कारण मैं उनके सिस्टर के घर पहुंच गई, मैं कोई जवाब नहीं दिया, मैंने सीधा जाके इसके दरवाजे पे वहां से हारन दिया, अभी चलो नीचे आओ। और फिर उन्होंने पकड़ लिया, नहीं यहाँ से कैसे जाओगे, आप ऊपर आओ। पर ये आपने गलत किया ना, बात आई गई यहाँ पे ये गलत होता है, ये आदमी की ईगो होती है। क्या हो गया? क्योंकि इसमें अब आपने ये देखना है कि आपको जो इतनी उम्र की औरत है, वो कहते हैं कि लोग उसमें गुस्से में अना में आके फिर आदमी लोग ऐसे करते हैं। आदमियों को तो मेनोपॉज नहीं होते ना, औरतों को होते हैं। जिस औरत ने आपके लिए 40 साल 50 साल गुजार दिए, अब अगर आखिर के उसके 10 साल उसके ये मुश्किल है, तो लेने पहुंचा कि नहीं पहुंचे भले, ये तो नहीं लेने नहीं पहुंचा। लेकिन आप क्यों गुस्सा दिखा रहे हैं? अगर औरत के तो वो कहते हैं गुस्से पे आप जाए नहीं इस उम्र में। जिस औरत ने आपको शुरू में बर्दाश्त कर लिया, अब आखिर में जब उसको इतना कुछ हो रहा है तो आप उसको सपोर्ट करें। हम इमोशनली वैसे ही रोने लग जाते हैं, हम इमोशनली वैसे ही हंसने लग जाते हैं। मतलब हमारे इमोशन हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, आप ये सोचें। तो मैंने फिर क्या किया, मैं जो इन्होंने कहा जी मैं पहुंच गई हूँ, तो बस मैं उसके बाद गाड़ी यहाँ से निकाली, 1-1.5 घंटे के बाद मैं इनके दरवाजे पे वो फिर बुलाया तो आ गया, मैंने कहा चलो फिर बैठ गए। सो ये कहानियाँ सारी ये इतनी सीधी सादी नहीं है जैसी लगती है। जितने आप लोग कहते हैं आंटी तो बेचारी बहुत ही वो अंकल बड़े रूड हैं, खड़ूस है, ऐसा नहीं है। मैं कहता हूँ ये सारी चीज़ें इनको डबल करके और इधर ले जाओ।